for me, you know, because then people started approaching me for a lot more comedies. जी. And till date, I'm known for my तो comedies. इन्होंने apart आपको बैलेंस शीट नहीं मांगी पोस्टर बॉयज की क्योंकि सेकंड टाइम रिस्क ले रहे हैं तो ऑनेस्टली बताइए बातें क्या हुई है यहाँ कम ऑन ही इज पुटिंग इन एवरीथिंग देयर नहीं, can you believe the first thing that he said? श्रेयस भाई यहाँ आके पूछा, श्रेयस भाई रिस्क तो नहीं है ना? पहले ही पूछ लेते. हाँ, because you begin in November, and I think he wants to say this in front of the world. Yeah. But I guess he knows. No, but you know what? The thing is, what I think actually convinced all of us is pretty much like he said, is the story. Yeah. And today is a time when content-rich films are really, really working big time. Yeah. I so wish and I hope that, you know, Door and Sajjanpur and Iqbal and Dil Dosti, etc. would have released today. We would have probably cracked the 100 crore club with those films. But yes, you know, we've always believed in that kind of films. I have believed in those kind of films, and I'm very glad that, you know, Hariji here and Raj sir both have that kind of same conviction. And it is the same conviction that just got us together and we decided to do this film. क्योंकि एक नए वेंचर के लिए 3 लोग यहाँ पे बहुत महारथी खड़े हैं. Let's clap them with our blessings. This is like more like congratulations. And it is inspired from a true story. हमारे विक्रम शंकर जी राइटर कहाँ है, जरा हाथ ऊपर, वहाँ देखिए. तो वो like राज जी also mentioned कि वो लोग ट्रैवल कर रहे थे पटना में टैक्सी में और टैक्सी ड्राइवर से बात करते करते उसकी कहानी सुनी और कहा भैया जरा बगल में लगाना, पूरी कहानी बताना. You must be such a fabulous listener कि आपने उनकी बातें सुन के actually ये पूरा process शुरू किया है. Now this credit goes to also Mr. Vikram Shankar. Yeah. He is a very good storyteller. हाँ, वो खुद मतलब राइटर है और वो कहानी बाकी भी कहानियां लिखी है. सर हम भी लेकिन बदनाम होते हैं, आरजे सर बात करते सुनते नहीं है. You know what I'm saying? For him to be a writer and a good listener and then take the cue. Exactly. You should have been in the cabin. You should have narrated your story to him. Probably would have made this. Today that would be the movie. Archana would have been the. Shreyas, what is the challenge? I know we can't talk too much about the story. Okay. As a director, what is the challenge? I know you're too high, you're a mark for challenges, but honestly, what is the challenge? With a lot of challenges. And सरकार की सेवा में का वो जो हम लोग करने वाले हैं. No, see, it's like, you know, when I did Poster Boys was pretty much something that was my baby. You know, I mean, I had worked on it in Marathi. I had known the whole film in and out. Hindi, we worked on the script and everything. But when something like this comes along, you know, and you know what, he approached me to direct the film first and then act in it. You know, so which was for me also pretty surprising. He said, "Sir, आपको आंसर देना है इसका पोस्टर बॉयज देखी थी आपने?" हाँ. So direction क्यों? Because I'm sorry, I'm again saying this. He comes with a baggage of being a fabulous comical timing, and I'm thinking the story has something heavy about it. So I want to know from you, sir. 100%. The story absolutely has a lot of humor in it. So that goes without saying. That's why. Because मतलब कहानी एक्चुअली जब लाए तब बड़ी सीरियस सी थी. हमने उसको बदल के कॉमेडी में, या तो आप पिक्चर देखेंगे तो बोलेंगे जो सीरियस फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी. एनीवेज बट या मेरा ये मतलब जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि सक्सेस के पहला स्टेज फेल्यूर होता है. तो आपको लगता है कि अब ये रॉकेट करने वाले हैं. हैप्पी दिवाली टू अस. थैंक यू. तो मतलब उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है किसी एक के कारण उसका फेल्यूर सक्सेस डिपेंड नहीं करता है. बिल्कुल. एंड मैं इनको इकबाल से देखा एंड बाकी काम तो हम लोग सब मिलके देखे हैं. तो मुझे लगा ही इज द राइट पर्सन फॉर माय प्रोजेक्ट एज ए डायरेक्टर एंड ऑल्सो द लीड एक्टर मिस्टर श्रेयस जी. So that's it. But yeah, there's like you are, there are a lot of challenges, you know. But to be honest, there are very few directors that I really trust, and one of them is me. So I guess we'll probably overcome all those challenges in time. No, I have a fabulous team here, you know, my team of actors here, my creative team, Sanjay and Prabhat ji, our direction team, Koshish, Rahul and all of that, Sandeep. So all of that, I've got a fabulous team here working for me. And Andy, our production guy, and Parthoda. So they are like working really hard day and night to make sure that we create a good product. The idea is to just, you know, get a nice product out there in the market because people are lapping it up. Director होने के नाते 3 चीजें जो आपने शायद 3 आपके डायरेक्टर्स से सीखी हैं, उनका नाम लेते हुए अगर आप बताएंगे. Just share this with us because for us, we are probably meeting you in the director का रूप. Oh, बाप रे. See, I've actually learned
something or the other from everything. Ji. You know, the kind of directors that I worked with come from varied schools of filmmaking. Yeah. Right from Nagesh Kukunur, who is very meticulous, very particular about then every there's little Farah. thing. And then there's Farah. 70 mm, who thinks 70 mm, who behaves 70 mm, or matlab wo, it's not that she's not organized, Yeah. she is, but she's bindas. Yeah. You know, and then there's Rohit, Yeah. who's a great combination of both. Everything, You yeah. know, I mean, blockbuster films. He knows exactly what the pulse is. Okay, so the and what he one needs to thing do. that you need as a director, because you are handling a battalion. I don't think Yeah, people wo- here know कि director का काम कितना मुश्किल होता है. I think one thing I need is blessings. That is all that I need. Oh my, jeet liya na? नहीं सच्ची, है ना? seriously. Catch, घुस गया. अरे please check out my Insta story. First time in my life of hosting a show, haven't seen a divine Ganesha Murthy staring at me, you know, from a beautiful creative there. Yeah, so yeah, I think that is all that we Blessed need right now venture. for this film. Yeah. So, I think we should call the cast. You're introducing a new pair here. yeah. We're introducing a new pair, that's Chetna and Nikhil. Nikhil. This is going to be their first film. Please come up on Let's clap for the new stage. pair that we're introducing. And this gentleman needs no introduction. Sudhir Pandey ji, please stage पे आ जाइए. Sudhir आपको ji, तो हम obviously. बाबूजी मानते थे टीवी पे देख कैसे लगता है हमारे Bauji. लिए. हमारे Bauji है. Then there's Shraddha Jaiswal. Shraddha Yes, Jaiswal, we've seen her hello. do some fantastic work on TV. This is her first film again. Then there's And a Anil. lot of variety you've done, Shraddha. I'm so proud again with And the there's, kind of stuff, such varied stuff. And there's Anil Charanjit. Hi. We've seen Anil Charanjit as Shiv Shankar in PK. है ना? We've So seen good him to in have you varied here. avatars again. So, क्योंकि अभी digital का ज़माना है. Just a question. yeah. Taking a cue from some of them here who've done digital and have done very well for themselves. What are you thinking about these stars these days, the digital stars? Well, they're huge, they're big, you know. I mean, but I think what these guys are doing in the film is going to be phenomenal stuff. And like you said, Kit, this film is about actors. Yeah. The story is about making sure that the actors are right and they cast right in those particular parts. So I think we've tried our best to make sure that they fit the part and they better do their job well. Okay. एक लाइन लेती हूँ. आपको देख के तो वैसे भी एक smile आती है because you start thinking of all the things he's played. What an honor is it for you to be with this amazing? ये बहुत कम लोगों को पता है. 10 साल पहले आपको तो मैं बता चुका हूँ गोलमाल के टाइम पे आई वाज असिस्टिंग रोहित सर. सो मैंने श्रेयस भाई को ये बताया था कि मैं इंडस्ट्री में एक्चुअली इनकी वजह से हूँ. इतनी आपने स्टोरी सुनी है कि किसी ने फिल्म छोड़ी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दूसरे एक्टर को मौका मिला है. तो Listen, everyone says Bachchan Sahab. How is this possible? So that's no. I just want to know the truth. So for a change, श्रेयस भाई थे. So actually मैं विस्लिंग वुड से पास आउट हुआ 2010 में और सुभाष जी का फोन आया कि अनिल ऐसा एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं एंड सॉन्ग शूट हुआ. नेक्स्ट डे मुझे पता चला, मैंने पेपर्स में देखा. एक्चुअली श्रेयस भाई कुछ और फिल्म का शूट कर रहे थे, डेट्स का कुछ इशू हुआ था. तो हालांकि सॉन्ग वॉक शूट हो गया था. तो सुभाष जी ने मुझे बुलाया, वो सॉन्ग मुझे ऐसा मिला. और जब मैं एडिट पे जाके मैंने सॉन्ग देखा तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको क्यों रीशूट कर रहे हैं. बट आई थिंक वो किस्मत में था. सो दैट्स हाउ मेरी पहली फिल्म आई एंड वो कनेक्शन अब ऐसा बना है कि इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. और Life's come a full circle. फुल for you, सर्कल Anil. एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी एट द सेम टाइम. गोलमाल के टाइम पे भी श्रेयस भाई से काफी कुछ सीखने को मिला. तो ऑफ कोर्स इनकी टाइमिंग बहुत अमेजिंग. Golmaal again के time पे Anil was our Anil, Abhishek and Ranjani were our acting instructors and they would tell us how to act. इस बार मैंने कहा कि अब इस बार मैं बताऊंगा तुझे. Tell आजा them. बेटा. Wow, really? नहीं एक्चुअली वी कांट टीच जितने गोलमाल के सारे 18-20 एक्टर्स है. यू कांट टीच देम बिकॉज यू हैव ग्रोन अप वाचिंग देम. यू कांट टीच देम. The toughest part of comedy for you? नॉट टू डू कॉमेडी. To not do it. Not to do it. Actually, I believe in situational comedy. And श्रेयस भाई ने जब ये स्टोरी नरेट ही की जब मुझे, जी. I was like कि bang on. कितना हंसाया उन्होंने? बहुत हंसाया. तो ये Narration is such a Herculean task. कैसे होता है वो? I think he is going to be the best director in coming years. Oh my 100% God! because- Let's clap for because- this also. Blessing, please. I'm not buttering, but I'm saying because no, being a great actor and आपको सारे कैरेक्टर्स दिख जाते हैं ना, आप सबको अच्छे तरीके से आप गाइड कर सकते हो जी. एक्टर्स के माइंड में जाके, जी. ना कि एज ए डायरेक्टर. Yeah. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो
काम आएगी। I hope आपकी काली जबान है और ये सच हो। ऐसा I'm ही gonna होगा। move on. मेरी बटरिंग हो चुकी। I'm going to move on to Shraddha, and I really need to know, since you've done such variety of work, आपके लिए इस project में, apart from this man and a great team, क्या exciting है? As you said, कि I have done a lot of variety of work, and this is one more variety which I have never played in my life. And जब मैंने इसका audition दिया था और जब मुझे script मिला था, ये तो मुझे लगा था ये मुझे ही करना। This was so much fun. And एक ही audition हुआ कि multiple हुए? क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए tough था ये. Oh no! I see a story here. multiple, but जो character है amazing है. Okay. And वो character के लिए I wanted to play this role, but I didn't know it's opposite him. तो वो add on हुआ and directed by him. And when I heard the script, मैंने कहा bang on. Bring it on, more than bang on. Superb. I'm so looking forward to it. Of course, we are going to see, just for little tease for you, हम लोग अभी तक picture की shooting full on शुरू नहीं हुई है. We're beginning in November. So we're going to see a pre-look. This is not the first look. This is not a poster. It's a pre-look, almost like a peekaboo into it. I'd like you to pass on the mic to Nikhil. Hi. Hi. What's up? Is it कि आपका character आपसे ही inspired है? पानी मिलेगा? नहीं इतना नहीं बुलवाएंगे, बस जितना आप बोल सकते हैं। जी ऐसा है, थोड़ा खुराफाती हूँ मैं और दिल्ली से हूँ थोड़ा तो। और ये बेस भी पूरा यूपी में होने वाला है तो। हाँ जी, नहीं थोड़ा स्लैंग का थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ थोड़ा अलग भैया भैया बोलते हैं। ये लैंग्वेज की निकल पड़ी है, कोई भी पिक्चर इस लैंग्वेज में आप देख लो, आपकी हंसी छूटना बंद ही नहीं होती है। क्या है खास? जैसे आप अब प्लीज बताएं, आपके बचपन में कोई आपकी कोई मौसी चाची रही होंगी जिन्होंने कुछ तकिया कलाम यूज किया होगा जिसको सुन के आपको भी हंसी आती होगी, कुछ ऐसा याद, ऐसी कोई याद है आपकी? मतलब ऐसा बचपन की यादें तो अभी तो शरीर काबर है जी। ऐसी कोई याद नहीं है, मतलब जैसे अभी रिसेंटली मतलब सवाल आपका समझ नहीं आया। मतलब कि कुछ कैरेक्टर रियल लाइफ के होते हैं जिनको देख के आप बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं कि हाय ये क्या है, एंड देन यू समवेयर गेट अ चांस टू प्ले इट इन अ मूवी, यू नो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। बड़े दिल से भाई पानी दे दो प्लीज कोई। ये तो दिल से पहले भी बात निकली थी। बात ये है कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है जी। सो मैं कुछ 13 साल से यहाँ पे आई बीन स्ट्रगलिंग और मैंने सीरियल्स बहुत कुछ किया दबा के, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा कभी फिल्म्स मिली भी, कभी पासपोर्ट नहीं हुआ बना, कभी वीज़ा नहीं लगा, किस्मत खराब होती है थी। तो मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ये। मैं सर को मिला, मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी, जो स्टोरी सुनी, ये तो मतलब बहुत बाप है। मतलब मैंने एक ऑडिशन दिया, थैंक यू सो मच मैम। तो मैंने Let me open it for you. नहीं आई विल डू दैट मैम। नो प्लीज टॉक। हाँ तो मेरे को पराग भाई हैं जो, पहले पी लो बस, नहीं सर पीते हुए बात मत कीजिएगा। तो मेरे को पराग भाई का कॉल आया, मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था, तो पराग भाई का कॉल आया, कह रहे भाई तेरा नंबर नहीं मिला, तू कहाँ पे है, बड़े दिन से दिखा नहीं। तो एक ऑडिशन है, बहुत सही स्क्रिप्ट है, निखिल तू आ जा। मैं कहा भैया अभी आ रहा हूँ। मैं कपड़े पहने, मम्मी पंजाबी हो गई थी, बेटा कहाँ जा रहा है? मैं कहा ऑडिशन देने गई थी, इतनी रात को ऑडिशन नहीं होते। मैं कहा होते हैं, कभी कभार होते हैं, वो मेरे पे शक करते हैं, मैं कभी कभार होते हैं। मैं गया ऑडिशन देने, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जो ऑडिशन स्क्रिप्ट थी बड़ी मतलब जालिम समझते हो, खुराफाती। मैं कहा भाई ये मैं हूँ, मुझे करना है ये। मैं कहा भाई मैं करूंगा। मैंने एक ऑडिशन दिया, पराग भाई फोन पे बात करते हैं, इनके असिस्टेंट आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि बढ़िया है आप देख लो। मैं कहा मेरे को मत दिखाओ, एक बार उनको दिखा दो। पराग भाई आए, मैं कहा भाई एक ही दिया और मेरे को लग रहा है इससे अच्छा दे नहीं सकता। और बस अगले दिन गुरुजी के पास पहुंची चीज और ग्रीन सिग्नल हो गया। ग्रीन सिग्नल हो गया। आज मुझे एक हमारे एडी भाई का मैसेज भी आया था। मतलब उनका मैसेज आया कि यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार आज। तो मैं उसको मैसेज किया, कौशिश भाई। मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा भाई मैं तो फाइनल हो गया, अब आपने लेट पूछा है। फिर मैं कहा मैं चलाता हूँ, गाड़ी चलानी आती है। वेल बहुत अच्छी कास्ट है मेरे साथ। मैं मेरे प्रोड्यूसर जो है, मेरे डायरेक्टर जो है,
ताली बजाओ। बिना पानी पिए, पानी पीने के बाद ये हाल है, और फिर फिल्म में क्या कर। तो आप सोच लो कि फिल्म कैसी होने वाली है। ये वेरी कूल Thank you, जी। निखिल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। सॉरी, मेरे साथ कॉमेडी हो रही है। You want to tell us what a madhouse this is going to be? I can't even imagine. आप क्या सोच रही हैं? I mean, I just met him. This is the second time, and I can imagine the first time also. जब इसका shoot चल रहा था, we all were like, कहाँ से आया ये? So I think it is. We all literally said, ये कहाँ से पकड़ के लाए? He's awesome. So are you looking forward to this pairing? This is so cool. Yeah, I mean, it's very unusual. Yeah. And it's very cool. हम इसे heels भी देने की बात कर रहे थे. No, please keep it like this. It's awesome. You want to tell us something about Shreyas and your memory of probably memory of जब आपने इनकी picture देखी होगी या जब मैं पैदा हुई थी ये ऑलरेडी पिक्चर कर रहे हैं, फिर मैं बड़ी हुई, ये फिर भी पिक्चर। I actually heard a lot about him through Rohit sir because I was a part of Dilwale. So वो जो team थी, that was the first time I actually got introduced to films, and it was so epic. Like I used to just always dream about being a part of something like this where Shah Rukh sir and Kajol ma'am and Rohit Shetty is directing. So it was an absolute dream, and now the second one is with him. So I can't ask for anything better. And this particular role, I can't believe it just happened because I didn't really go for the look test. Parag actually called me, but my dates were not available. So I actually went with a friend of mine. He was going for an audition. So he said, they audition, dekhte hain kya hota hai. And then I read the script. It was full Desi, full Hindi, and I was not even wearing Indian stuff. So I was like, okay, मैं कल आके देख के जाती हूँ. And I was like, नहीं, मैं नहीं देती. मुझसे इतनी हिंदी बोली नहीं जाती. It was like typical that UP वाली Hindi. But then somehow I gave it, and in 2 days it just happened. So I feel sometimes जो आपके लिए चीजें होती है ना, आप कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हो उनके पास. But welcome to the actor's domain. He will make you speak any language. When he doesn't speak, also he manages to. Yeah, I am looking forward for a lot of learning. I think sir, आपको तो देख के ऐसे लगता है कि आपसे थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें. तो I think इन्होंने आपको इसलिए लिया है वो आशीर्वाद लेने के लिए, है ना श्रेयस? He is such an amazing actor. सुधीर जी और हम एक सुधीर जी ऑफ कोर्स वो सीरियल पहले से कर रहे थे अमानत नाम की, और मैं उसमें मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था स्मिता बंसल के अपोजिट. तो तब से हम जब उनको टीवी पे देखते थे सुधीर जी को, तो बाऊजी वाला इमेज इतना स्ट्रांग था. तो तभी I come from a family of sisters, so एक feeling like you totally connect. Lovely, super. तो वैसा ही था. उस वक्त हम भी मतलब डर रहा था मैं उनके साथ सीन करने के लिए भी, मेरी मतलब बोलती बंद हो जाती थी. And cut to when we, of course, the script came, the first name that came to our mind was Sudhir ji, and I'm so glad and honored and happy that Thank you, he decided to be a part of it. आपके लिए श्रेयस then and now कितने different हैं ये? डिफरेंट इनकी मतलब इनकी ग्रोथ दिखती है, इनकी प्रोग्रेस काम की दिखती है, इनकी टैलेंट में जो एक निखार आया है वो भी नज़र आता है. और जिस वक्त हम लोग साथ काम कर रहे थे तभी इनमें इतना स्पार्क था और इतने अच्छे अच्छे सीन्स हम लोगों के होते थे. फिर उसके बाद फिर कभी काम करने का मौका नहीं मिला. हम अपने करते रहे काम. ही वाज बिजी इन द फिल्म्स. और फिर when he got, as you rightly said, the film Kuknur wali film, and yes, his work was terrific. Stupendous. Yeah, तो फिर धीरे धीरे मतलब दिखता तो रहता ही है कि आसपास हमारे साथ जिन्होंने काम किया है वो आगे कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कौन कहाँ तक पहुँचा, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, ये आसपास नजर आता ही है. But see, imagine sir, junior and now directing you. Yes, it's something really, and because I think the way he narrated the subject, it clearly showed, how clear he is about the subject. Yeah. And second thing, कि जब क्या होता है कि अब आपकी जर्नी एक as an actor आप उससे निकलते हैं और उसके बाद जब आप बाकी एक्टर्स को हैंडल करते हैं, तो उसको बाकी एक्टर्स से काम निकालना, बाकी एक्टर्स से उन बारीकियों को निकालना जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है,
वो क्योंकि क्या है कि आमतौर पे आप देखिए, जैसे अभी जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले कि अब एक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा आ गया है, आज उसकी डिमांड हो गई है, उस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और क्या है, बड़े ब्लॉकबस्टर्स तो बनते रहेंगे, वो होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सादी सी कहानी को सादगी से कह देना ज्यादा डिफिकल्ट है। Absolutely, sir. वो सबसे ज्यादा। Absolutely. जो स्टोरी टेलिंग है, आप एक ग्लॉस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, तमाम जगलरी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो अवेलेबल है और सिनेमा में वो सब यूज होती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब श्रेयास ने मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया या कहानी नरेट की जिस तरह से, तो मुझे समझ में आया कि ये वो चीज़ है जो एक सादगी से कही गई है और सादगी से ही प्रोजेक्ट की जाएगी, और जो इसको जो बयान कर रहा है, जो इसको बता रहा है, वो जब इतना क्लियर है और उसलिए तो वो मुझे लगता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होगा। So these are, I just want to know, everybody loves reality-based films. You know, these days we love, because you're like, अच्छा ये हुआ है, you know. जी. आपके लिए, as a viewer, how much does a subject attract you if it's really happened? मतलब just to know. नहीं, मेरा तो हमेशा ही मानना रहा है कि सब्जेक्ट ही सब कुछ है। Okay. सब्जेक्ट मतलब स्क्रिप्ट और कहानी के ऊपर कहीं नहीं जा सकते। अगर उसमें कितने भी कुछ हो, सब कैसा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें अगर गहराई नहीं है, उसमें अगर कुछ बात नहीं है, तो एक्टर कहाँ तक कुछ कर लेगा। तो इसलिए कहानी का और स्क्रिप्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। रियल लाइफ और नॉट, इट डजंट मैटर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड फिल्म है, मतलब ये हुआ है। नहीं, मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ बेस्ड है, ठीक है, लेकिन अगर फिक्शन भी है ना, वो भी बिलीवेबल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा, यू नो, वो सतह पे रह जाएगा। तो कोई भी चीज जब हम दर्शकों को दिखाते हैं वो बिलीवेबल होनी चाहिए उतनी देर के लिए, चाहे हम कुछ झूठ ही दिखा रहे हैं या ऐसा नहीं होता है वही दिखा रहे हैं, कोई इमेजिनरी कल्पना ही दिखा रहे हैं, वो कल्पना उतनी देर तक आपको उसमें अगर आप डूब जाएं तो वो एक मेकर की अचीवमेंट है। आहा, मेकर।
मज़ेदार कर रही थी, अब वो समय आ गया, 2 साल इतने टाइम ही क्यों? सी मतलब कहानी भी तो सही होनी चाहिए कुछ करने के लिए. सो आई वॉज बिजी विद अदर एक्टिंग थिंग्स. तब गोलमाल भी चल रहा था, सेटर्स की शूटिंग चल रही थी, एंड देन ऑफ कोर्स ये जब कहानी आई तो कहानी में दम लगा और ऐसा लगा कि यार ये मज़ेदार सी चीज़ है, इसको अपने तरीके से बता सकते हैं, एंड दैट्स द रीज़न आई डिसाइड. एंड ऑनेस्टली जब पोस्टर बॉयज़ डायरेक्ट किया था तब भी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँगा. तो वो सनी पाजी ने कहा कि तू कर ले, तो वो मस्ती मस्ती में सारा हो गया. सो सीरियस थॉट ऐसे डायरेक्शन को दिया नहीं था. ऑफकोर्स आई वाज वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स, बट ये जब कहानी आई तो दे लाइक आई सेड दे अप्रोच मी टू डायरेक्ट इट फर्स्ट एंड देन एक्ट इन इट. So I was quite taken aback and surprised, but I loved the story, and that's how we decided to go ahead with it. ओके, तो पोस्टर देख के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो अगर थोड़ा कुछ बता दें, थोड़ा ग्लिम्स अगर मूवी. ये जैसे उन्होंने कहा कि एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तो उसी टैक्सी ड्राइवर की एक कहानी है जो कई सालों से सरकारी नौकरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे को सफलता नहीं मिली. फाइनली ही डिसाइडेड टू बाय हिज ओन कार, अपनी गाड़ी लेने की सोची, और उसके बाद उसके लाइफ में फिर जो घटना घटी उसके वजह से उसे झक मार के सरकार की सेवा करनी पड़ी. तो वो क्या करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी, और उस दौरान क्या क्या हुआ, वो बेसिकली कहानी है. ओके, जैसे कि अभी स्टेज पे भी कहा गया है कि जब भी कॉमेडी का नाम आता है तो आपका नाम जरूर आता है. यू कम विद अ कॉमेडी पैकेज. सो कभी आपको प्रेशर फील होता है क्योंकि आप जब भी आते हैं एक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को आपसे? Actually, not really, because see, humor is something which is pretty much a part of me. वो एक काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है. मैं कभी कभी कुछ सीरियस फिल्मों में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा ह्यूमर होना चाहिए लोगों को रिलीफ के लिए. एंड इफ़ यू लुक एट माई फिल्मोग्राफी, तो मैंने फ्रॉम सटायरिकल टू स्लैपस्टिक तो सारा किया है, फ्रॉम डार्क ह्यूमर, एवरीथिंग. सो ह्यूमर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई थिंक प्रेशर लेंगे तो फिर वो जैसा चाहिए वैसा काम कर नहीं सकेंगे. इट्स बेटर दैट वी जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम. हमारी स्क्रिप्ट पे जैसे काम हो रहा है, मैंने कहा जो टीम है, जो एक्टर्स है, जैसे निखिल है, बड़ा अतरंग सा कैरेक्टर है वो, और हमें वैसा ही वो बंदा चाहिए था. फिर श्रद्धा है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस. सो एक्टर्स, सुधीर जी, यू नो, ऑल ऑफ देम आर प्रीटी मच फिट फॉर द पार्ट. माई ओनली थिंग इज़ टू मेक श्योर दैट दे डिलीवर व्हाट आई हैव इन माइंड, विच आई नो दे विल. सो प्रेशर अगर अभी से लेना शुरू कर दूंगा, देन आई वोंट बी एबल टू रियली परफॉर्म माई सेल्फ. ओके सर, सरकार मूवी की बात करें, सरकार, तो इसमें इसके पहले भी आपने जो मूवी डायरेक्ट की उसमें एक सोशल कॉज, एक मैसेज दिया गया था. इसमें भी ऐसा कोई मैसेज दिया गया या कोई एक मुद्दा उठाया गया करंट इशू से? वैसा मुद्दा नहीं कहूँगा मैं, बट मैसेज ज़रूर है, और बड़ा प्यारा सा एक मैसेज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट. जो हम अक्सर जिन चीज़ों की बातें करते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश की है. मूवी में एक्टिंग करना या और डायरेक्टिंग करना ज़्यादा कौन सा चैलेंजिंग लगता है या मज़ेदार लगता है? ये दोनों चीज़ें एक साथ करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यू नो, पहले जैसे मैंने कहा कि मैंने सोचा था सिर्फ डायरेक्ट करूँगा, फिर बात आई कि नहीं सर आप ही एक्ट कीजिए, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है. बट बाकी अदरवाइज आई थिंक इट्स, अगर आपकी टीम सही हो तो फिर उतना टेंशन नहीं होता, बट थोड़ा सा प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है. क्योंकि मैं अक्सर पोस्टर बॉयज़ के वक्त में अपने डायलॉग खुद भूल जाता था, क्योंकि मैं सनी पाजी, बॉबी, उनके डायलॉग्स पे फोकस करता था. बट आफ्टर दैट आई लर्न अ लॉट, एंड आई होप इस बार वो गलतियाँ नहीं होंगी जो पिछली बार हुई थी. ओके सर, डायरेक्शन की बात करें तो ऐसा see, this is a genre which I am coming back to after a really long time. मैंने शुरुआत इस जॉनर से की है, फिर चाहे इकबाल हो या डोर हो, सज्जनपुर हो, दिल दोस्ती एट्सेट्रा हो. तो आई वॉज नोन फॉर दोज काइंड ऑफ फिल्म. ऑफकोर्स उसके बाद में गोलमाल, आज मतलब अगर आज का जनरेशन मुझे जानता है तो गोलमाल के लिए जानता है. बट आई स्टार्टेड विद दिस जॉनर एंड इट ऑलवेज फील्स ग्रेट टू कम बैक टू दिस जॉनर अगेन, यू नो. तो इम्पैक्ट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, ह्यूमर भी भरपूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यू नो वो कैरेक्टर की छोटी छोटी जो नुएंसेस है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो सब मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो भी लोगों तक उतने ही स्ट्रांगली पहुँचे जितना ह्यूमर. ओके, लास्ट ऐसा क्या कहना चाहिए, बहुत ही जल्द मूवी बनने वाली है? हाँ, मतलब दिस टुडे हम तो प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग है और अनाउंसमेंट थी कि उनके फर्स्ट वेंचर. तो जैसे उन्होंने भी कहा कि वी जस्ट नीड पीपल्स ब्लेसिंग्स. ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चरें बनाना चाहता है, बट वो मैं जब हमारे प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि सर आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि हम और भी फिल्में बनाएंगे, तो उनका आंसर ये था कि सर एक चीज़ होती है कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त वो सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचती है,
वो प्रेग्नेंट होने के बाद ये नहीं कहती कि मैं और 10 बच्चे पैदा करने वाली हूँ, यू नो. सो आवर एफर्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, वेयर वी विल जस्ट गिव अटेंशन टू दिस फिल्म. पहले इसी पे फोकस करेंगे, विल मेक श्योर कि इसको रिलीज ठीक से हो, ये ठीक से बने, उसके बाद अगला सोचेंगे. सो राइट नाउ ऑल आवर एनर्जीज आर फोकस्ड ओनली टुवर्ड्स सरकार की सेवा में. थैंक यू सो मच. सबसे पहले जानना चाहूँगी आप दोनों से कि आप सरकार की सेवा के पार्ट कैसे बने, इस मूवी के पार्ट कैसे बने? मेरा तो बहुत ज़्यादा crazy incidents हुआ है. So they called me up for it, and then I'm shooting for a web series. I'm shooting for class of 2020. So I didn't had my dates. So मैंने मना कर दिया था. So my co-star Rohan, he was called and he was going for the look test, and he's like, "Come with me. We'll just go like that." So I was like, "Okay, let's." I am not giving, but I'm just coming with you. So I went there. Then I met Parag. He's like, "You just give it. It's okay. Dates से या फिर भी manage रहेगा, पर एक बार दे दे." So then I got the script and I was like, "यार आज तो Indian नहीं पहने, कल आती हूँ." So then मैंने वहाँ से भी बात को कर दिया. Then my friend gave the audition, and then the next day I went there and I gave it, and I think 2 दिन में फिर मुझे कॉल आ गया था. So I feel sometimes ना few things are meant for you. आप कहीं ना कहीं उसके पास पहुँच ही जाते हो. Like second day also I was like जाऊँ कि नहीं जाऊँ, but then somehow I just went there and it just happened. So yeah, it was pretty crazy. आपसे जानना चाहूँगी आप इस मूवी का पार्ट कैसे? मैं वही बताया कि मैं ऑडिशन देने गया था. मुझे रात को फ़ोन आया तो मम्मी कह रही नहीं जाना, रात को ऑडिशन नहीं होता. तो मैं कहा नहीं, रात को ऑडिशन होता है. वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते ना, मैं थोड़ा सा दिल्ली से हूँ ना. तो मैं ऑडिशन देने गया, मैंने ऑडिशन दिया. पराग भाई जिन्होंने कास्टिंग करी, ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मूवी, एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो उन्होंने बताया निखिल भाई बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, मज़ेदार स्क्रिप्ट है, तू देख ले. तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ शो, अभी स्टार्ट होने वाला है सब टीवी पे. वो एक अलग मेरी चीज़ स्टार्ट होगी. बट मैं कहा भाई थोड़ा डेट्स का ऊपर नीचे हो जाएगा. कह रहे वो टेंशन नहीं है, तुम देख लेते हैं. मैं कहा ठीक है. तो मैं कहा शूट कहाँ कह रहे हैं? लखनऊ. मैं कहा वाओ, क्योंकि मेरे को थोड़ा देसी टेस्ट थोड़ा पसंद है. ऊपर से ठंड भी है ना, तो ठंडा ठंडा मौसम होता है. तो मैं मतलब ऑडिशन दिया, एक ऑडिशन दिया. मैं पराग भाई को बोला, मैं कहा देख लो भाई मेरे तरफ से ओके है. कह रहे तेरी तरफ से ओके है? मैं कहा ओके है. कह रहे मेरी तरफ से भी ओके है. तो बस श्रेयस सर को दिखाया. 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आ गया, मैं फाइनल हो गया. बस मुझे बहुत खुशी है, और मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ शी इज़ माई को एक्टर. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, and she has a blue tick also on it. He's been taking the case of my blue tick, but I am so glad, you know, this is the second time I'm meeting him, and he is incredible. Like I'm laughing, everyone's laughing whenever he's around and we see him. So yeah, this is going to be an epic journey already, I feel. स्टोरी को सुनकर सबसे पहले क्या थॉट आया दिमाग में? बट बाप है, मतलब स्टोरी इज़ वेरी नाइस. क्योंकि आजकल का देखो, आप बधाई हो, देख लो आयुष भाई की ये सब फिल्में जो हैं, अमित शर्मा जी जो डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो छोटे छोटे कंटेंट यूपी, बरेली, दिल्ली, ये जो चल रहा है, ये बहुत बात चल रहा है आजकल, समझ लो. स्मॉल बजट फिल्म्स भी हैं और पैसा भी दबा के कमा रही हैं. इंटरेस्टिंग कि कैसे रियल लाइफ जो स्टोरीज होती हैं, हाउ इवन इन अ स्मॉल बजट यू कैन प्रोजेक्ट इट, और अगर आप उससे बनाएं, सो इवन दे कैन टच यू नो any numbers today, so that is epic. So I think जो story है वो real hero है आज की date में. Yeah, that's why knowing this story, it's a real story, and something has happened while someone was traveling. It is insane. मैंने भी जब story सुनी थी, I was like wow, I have to do it. Actually श्रेयस सर पे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है. बिकॉज व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट डे, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि पहली मुलाकात थी मड आइलैंड में. तो मैं मिलने गया और उनको मैंने हाय किया. तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, बट इतना कंफर्ट लेवल दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से बात करी और बिल्कुल मेरे स्टाइल में मेरे से बात करी. तो मैं और खुश हो गया. मैंने कहा यार तो मेरे जैसे हैं. और बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब मतलब सब बाप बंदे हैं, प्यार कर रहे हैं. और मैं सबका मेरे ख्याल से चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, और मैं बहुत, मेरी हाइट भी, मेरे को श्रेयस सर ने बोला कि ऐसे सीधा खड़े रहे. तो मैं इतना कॉन्शियस हो रहा हूँ, मैं ऐसे सीधा खड़े हूँ. आप देख रहे हो कि जब वहाँ कुछ चल रहा था, तभी मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ सीधा खड़े होने की, क्योंकि मैं ऐसे नहीं खड़ा होता. बट मैं ट्राई कर रहा हूँ. और मेरे को अभी जिम भी जाना है. श्रेयस सर ने बोला है डोले वोले बनाने हैं थोड़े से, और ये हंस रही है, मजाक है, मैं बना सकता हूँ. 20 दिन में क्या मैजिक होगा हम चलो देखेंगे. 20 दिन में कुछ तो आएगा. टी शर्ट थोड़ी तो टाइट हो जाएगी. कितनी एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर? ऑब्वियसली बहुत, जितना आप हैं हम भी हैं. बहुत एक्साइटिंग है, एंड द बेस्ट पार्ट इज हम लोग लखनऊ जाके शूट कर रहे हैं, रियल लोकेशंस, एंड
बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. भाई ये फिल्म आ रही है जल्दी, ठीक है, बस देखना जरूर. और मैं कह रहा हूँ मजा आएगा. बहुत ज़्यादा मजा आएगा. मीन आप हंस के पागल हो जाओगे. ऑफ कोर्स श्रेयस सर इज देयर. छोटा पैकेट बड़ा धमाका इज आल्सो देयर. Blue tick also there. So yeah, it is going to be interesting. Thank you. Thank you.